Class 10th CBSE results, board exam results just came a few days ago, and our students have performed extremely well. And the top student performer of the school is also the district topper of Taran Taran. He scored 97%, Udaybir Singh Nanda, and he has English, Maths, Science, SST, Hindi. We have taken all the core subjects, not even counting his marks in IT or Punjabi. If we just take the core subjects, he's taken 97%, and he's the district topper of Taran Taran. And the second topper of the school, Diya, she's 96.2. I think there's still some debate going around with some other schools, but I think that we have to check the data, she's also the second topper of Taran Taran, if I'm not mistaken. So again, it's not about numbers alone. The kids, this is a good motivation for us as a school कि हमने जो पढ़ाया, जो strategies adopt करी हैं, वो बच्चों के लिए work करी हैं. Students, and these students are somebody, Uday, I remember, he's also been an excellent awardee of our school. He's also been a state basketball representation of our school. He's a district champion of badminton as well. So extracurriculars, academics, all of it is equally important for Wood Blossom. And with this result, we want to just spark this thing that it's not about just numbers and marks. Yes, they are a good byproduct of a job well done. But if the holistic learning is good, आपने extracurriculars, academics, projects, these students are part of Interact Club of the school. They organize food drives for slum areas. So building these 21st century critical competencies is equally important, and we are focusing a lot on that. The school has also started 11th and 12th. We are offering all the three streams: medical, non-medical, commerce, arts. So these students have also joined us back. Many from other schools have also joined us back. So this is like a good boost for us as a school, and also a reason that we need to work more hard, that next year our students should perform much better than this. They should break their own records, and this should be a motivating factor for the other students in the school, that 10th is not like a taboo. कोई हुआ नहीं है board exam. It's easier to score if you have the right strategy, if you are working effectively, not just towards the end of the exam, but regularly आप कैसे उसको targeted strategy के साथ approach कर रहे हैं. And boards is not a challenge, and the teachers have done a fabulous job training the kids, mentoring them regularly with their sample papers, solving the critical problems that they are facing, and not just exams after exams. So our math was a weak point, which this time I think 99 it has happened. Math, English, all of it. I think we have the average pass percentage, 100% is the pass percentage of the school, but the average marks of the class, keeping it all the class 10s together, is 75 plus. That means, and I think good 15% of the cream has scored more than 95%. More than 30% of the class has scored more than 90% marks across subjects, which is like a big boost of morale for us, and we continue to aim higher. We continue to, I think we will compete with ourselves now, and we'll keep pushing our boundaries. This is what I want to say. I'm very happy and very proud, and my congratulations to the parents and the families of these kids. I'm sure they provided the right learning environment at home for them to succeed. देखा जाए बाकी बच्चों को की मैसेज देना चाहते हैं जी? सर बाकी बच्चों को ये मैसेज देना है कि 10th को 12th को हम यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स को बच्चे ना स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, हवा बना लेते हैं. वो ज़रूरत नहीं है. CBSE's का पेपर पैटर्न, teaching style, student input, all the three things, if they go in tandem, it's a very targeted, strategy-driven papers which are there to assess a child's learning. Mug up करने से और rote learning से ज़्यादा, if the child just focuses on that, I just need to enjoy the learning, understand the concept, and just understand the paper pattern with the right direction, without even tuitions. Our school topper, district topper, was not even taking any tuitions. So instead of wasting time, money and effort there, just focus on the school learning and the right guidance, and I think they should be able to do wonders in life. And in fact, the rest of the time that they're able to save, they should try other hobbies and interests and extracurriculars.
Is that what I want to say? लोग तो शुरू से मेहनत करते हैं बच्चे पे कि वीक से वीक भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। कोविड के बाद से काफ़ी बच्चों के रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैथ्स वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जब शुरू हो गया था घर से पढ़ाने का, तो उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आप 1-to-1 ही पढ़ा सकते हो। जैसे मैथ्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन चले गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम तो हमने लास्ट ईयर वही किया कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो बच्चे जिसमें वीक हो गए थे उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की। तो हमने यही किया कि ओवरऑल जो ऊपर वाले बच्चे जो अच्छे पढ़ते हैं उन्होंने तो अच्छा करना है, उन पे भी हमने फोकस किया, और जो नीचे वाले जो कम कर रहे थे उन पे भी हमने फोकस किया कि नीचे वाले भी एक अच्छे लेवल पे हैं, ताकि ओवरऑल सारे ही बच्चों का अच्छा जाए। तो हम सिर्फ यही नहीं देखते कि बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल पूरी की पूरी डेवलपमेंट बच्चे की होनी चाहिए। जैसे आप अब्रॉड भी देखोगे, ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव बच्चे का बन के आता है, उसको शुरू से पता होता है कि मैंने ये बनना है। जैसे शुरू से बच्चे को पता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसके बाद वो उस हिसाब से मेहनत करनी शुरू करता है। उसी हिसाब से हम बच्चे को शुरू से बताते हैं, सबको बताते हैं भी 11th में जैसे बच्चे गए कि उन्होंने आगे करना क्या है, उनके पास क्या क्या और चीज़ें हैं। जैसे किसी ने कॉमर्स ली है तो कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है। इंडिया में अगर रहना है आप ये चीज़ें कर सकते हो, CA जैसे कर सकते हो। बाहर के लिए अगर किसी ने अब्रॉड जाना है तो CA ना करे, वो CPA करे। तो ऐसी ऐसी हम चीज़ें हर चीज़ की बताते हैं। अगर किसी ने डॉक्टर करना है, डॉक्टर्स अब्रॉड बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, तो उस हिसाब से कि कौन से मेडिकल कॉलेजेस आप जा सकते हो, आपने उसके एंट्रेंस क्लियर कैसे करनी है। तो हम हर चीज़, जैसे गेम्स का भी, हम गेम्स में भी कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे अभी टूर्नामेंट्स हुए थे तो उस टाइम पे भी हमारे स्टेट लेवल तक बच्चे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स तो थे, तब स्टेट लेवल तक भी हमारे बच्चे गए हुए हैं। तो भी हम कोशिश ये करते हैं कि हर बच्चा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे। एनुअल फंक्शन के अंदर भी हम कोशिश करते हैं 100% पार्टिसिपेशन होए। तो हम लोग हर चीज़ का प्रोस्पेक्टिव लेके कि बच्चा हर चीज़ में अच्छा रहे, तो वो कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि जो क्लास में 1-2 बच्चे के ऊपर कि ये टॉपर है तो इन्हीं पे करते रहे। कोशिश हम ये करते हैं कि नीचे से लेके टॉप तक सारे बच्चे अच्छा करें। जो नीचे जो बच्चे जो 30-40 के हैं वो किस तरह से 60% 70% पे आ सकें, जो टॉप करे वो और कैसे अच्छे लेवल तक जा सकें, उस पर कोशिश करते हैं हम लोग। सर, और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप छोटा मत सोचिए, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम्स ही सब कुछ है। 10th के बेसिस पे आपने स्ट्रीम्स लेनी है, 12th के भी एग्ज़ाम्स है। 12th के बेसिस पर मतलब अपनी लाइफ के का बड़ा सोचिए, अपने पेरेंट्स को देखिए, आप एक पिक्चर लेके चलिए कि आपने आगे जाके क्या करना है, उस हिसाब से आप देखिए कि पूरी की पूरी आपने स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए। हर चीज़ आप कीजिए, थिएटर कीजिए, ड्रामा कीजिए, हर चीज़ कीजिए, और ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, पढ़ाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर बाकी चीज़ों पे भी बच्चों को इतना ही इक्वल करना चाहिए। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और पढ़ाई भी कीजिए साथ साथ। सर, एक जो लड़का उदयवीर सिंह नंदा जो डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ टॉपर आया है, वो NDA ਦੀ तैयारी कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा, और बच्चों को आर्मी वगैरह में जाना चाहिए। आर्मी में आजकल बहुत अच्छा है, धीरे धीरे पर्सनालिटी जो डेवलप होकर आपकी जो लाइफ ही कैसे चेंज हो जाती है। मेरे अपने फादर एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो मुझे पता है कि कैसे एक सिविलियन से एक आप लोग जब डिफेंस में जाते हो कैसे आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वो बहुत आपकी अगली जनरेशन जाके चेंज हो जाती हैं। मतलब लाइफ का जैसे वो आउटलुक एक बना के देते हैं आपको, जैसे आप आर्मी में रहते हो, उससे वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें जाना चाहिए बच्चों को। आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि लोग जा नहीं रहे हैं आर्मी वगैरह में, बच्चों को जाना चाहिए। हम भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करते हैं। मेरे पापा थोड़े बीमार हो गए, जब पीछे जब वो थे, वो अपने आप आके बच्चों को बताते थे, पढ़ाते थे कि कैसे NDA में जाओ, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली उसका कैसे IMM में जाओ, और उसमें जाके आप कैसे डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हो। तो इंडिया में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसे डिफेंस वगैरह में जाओ। डिफेंस कितनी हमारी वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड है, उसके अंदर बहुत सारे आप फाइनेंस में जा सकते हो, इंजीनियरिंग करके जा सकते हो, 10th में के बाद जा सकते हो, 12th के बाद जा सकते हो, अलग अलग लेवल्स में आप अंदर घुस सकते हो। तो वो बच्चों को पता होना चाहिए, हम बताते हैं, उस हिसाब से आप उसके अंदर अप्लाई कीजिए और आर्मी में भी जाइए। आर्मी की लाइफ बहुत अच्छी है।